Welcome to SLD online class 7th standard general science. In this video I am going to explain you the disaster manager, that is our 10th chapter. What is disaster management? Disaster means that we have learnt in the 6th standard about the disasters. So we are going to here also read the management of the disaster. In the various news item and about disaster you have seen in the various news. The bridge has broken, in Mahara bridge collapse, all that. Here you can see the news paper, many things, that the 11th phone in a 26th 11th the phone trail point to local link, all that. The tsunami had occur in the Asia. All this is the disaster. Disaster मतलब क्या है, जो नेचरली अकर होता है या फिर मैन मेडली अकर होता है, उसको डिजास्टर बोलते हैं. तो अभी मैं आपको यहाँ डिजास्टर के बारे में फुल्ली पढ़ाने वाली हूँ. और हम लोग डिजास्टर के बारे में 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़े थे. We can prevent certain disaster while it is necessary to take a precaution in the case of some other disaster. Natural and man-made disaster are related to each other. So, natural disasters such as famine, lightning streak, cloud burst, storm, etc. occurs due to the change in the weather. There is a possibility of loss of life and damage to the property in such natural calamities. Those who is to be held responsible for that. What can we do to deal with this loss? What is the disaster? There is a man-made disaster and natural disaster. All these both are related to each other. So, natural disasters are like lightning, streak and cloud burst or a storm. So, this occur due to the weather change. Natural और man-made disaster क्या है? एक दूसरे को रिलेटेड है. रिलेटेड होने की वजह से ये काज होता है. दोनों सर्टेन डिजीज भी काज होता है, प्रिवेंट भी हो सकता है. सो नेचुरल डिजास्टर कैसे, जैसे लाइटनिंग हुआ, क्लाउड ब्लास्ट हुआ, स्टॉर्म हुआ, ये सब नेचुरल डिजास्टर. एक क्यों अकर होता है? वेदर में चेंज, क्लाइमेट में चेंजेस के वजह से ये अकर होता है. तो इससे पॉसिबिलिटी है लॉस ऑफ लाइफ डैमेज हो जाता है, प्रॉपर्टी डैमेज हो जाता है और नेचुरल क्लैमिलिटी भी डैमेज होता है. So now we are going to learn what can we do to deal this loss. Now famine, the condition that arises due to the long-term service scarcity of food, grain and water is called famine. Famine can be very several. All through the main cause of famine is natural phenomena leads to a famine condition. It created by some human activity besides some natural event. What is a famine? ये famine क्या है? ये लॉन्ग टर्म है, एक कंडीशन सर्वाइव होता है सैक्रिसिटी ऑफ फूड ग्रेन के वजह से. तो इसको हम क्या कहते हैं? जो सर्वाइव करते हैं फूड ग्रेन को लॉन्ग टर्म के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? फर्मिंग कहते हैं. फर्मिंग कैन बी अ वेरी सो ये बहुत ही एक काज होता है नेचुरल फिनोमिना के वजह से, जैसे ह्यूमन, और ये भी एक कंडीशन है क्रिएटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी. ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो क्रिएट करता है फेमिन को. ये क्या होता है? ये ह्यूमन एक्टिविटी पर क्रिएट होता है कंडीशन पर, और बिसाइड सब नेचुरल इवेंट भी, नेचर के अलग इवेंट्स के ऊपर भी ये डिपेंड होता है. सो काज ऑफ फेमिन: drought, heavy rains and flood, crop getting washed away or damaged in the flood. Environmental changes such as temperature changes, storm, cold wave or fog. Damage of crops by animals like mice, rat, attack of the pits. And diseases of the crop. A natural calamity like earthquake, etc. are some of the causes of the famines of this. Drought is the main causes. Man-made causes of the famine include war, internal unrest, absence of transport route, uncontrolled pollution, growth, etc. Famines क्या है? एक ऐसा कैसे काज होता है?
ये काज होता है ड्रॉप के वजह से, हेवी रेन के वजह से, फ्लड के वजह से, या फिर क्रॉप जो वॉस्ट अवे हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है और फ्लड होता है इसके वजह से, या फिर एनवायरमेंटल चेंजेस रहता है, टेम्परेचर में चेंजेस रहता है, कोल्ड रहता है, फॉग रहता है, बहुत सारे डैमेज हो जाते हैं, काउ को डैमेज करते हैं, एनिमल्स जैसे माइस क्रॉप को डैमेज कर देते हैं, तो इसके वजह से और अर्थक्वेक आ जाता है। तो क्या होता है, इसमें फेमिन नहीं ग्रो हो पाते हैं, तो यहाँ पे प्लांट्स अच्छे से नहीं ग्रो हो पाते हैं, तो हमें यहाँ पे फूड नहीं मिलता है। और मैन मेड भी रहता है, जैसे वॉर हो जाता है या इंटरनल अनरेस्ट हो जाता है, और एब्सेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट रूटिंग, अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन अनकंट्रोलली ग्रोथ हो जाता है, तो इसके वजह से फेमिन काज होता है। देयर आर record of loss of life caused by a several famine in the various part of the world. Asia has turned out to be a most famine affected continent of the world. A majority of the famine occurs in the drought prone and the flood affected regions. Among the most dreadful famines that has occurs in the world are the famines that affected India and China. फेमिन्स क्या होता है, इससे बहुत सारे, देर इज अ लॉस ऑफ लाइफ दैट अकर्स इन द फेमिन इन एशिया, इट हैज टर्न इन द मोस्ट अफेक्टेड continent of the world. Asia is the most continent that it is affected by the famine. The famine is more like flood affected region here more because of the rainfall. Flood will come if there is a deforestation. Because of the deforestation, all these are occurring. So in India and China, India and China is most affected country because of the famine. Are we responsible for famine? Water storage increasing as the balance between rainfall and population is disputed. What happened? The water storage is increasing and as the balance between rainfall and population is disturbed. यहाँ पे पानी का स्टोरेज क्या हो रहा है, ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो रेन में और पॉपुलेशन में डिस्टर्ब हो, रेनफॉल हो रहा है और पॉपुलेशन के बीच डिस्टर्बेंस हो रहा है. Though there has been a various height rise in the production of the food grain as a result of the green revolution, the balance of the environment has been lost due to the use of chemical fertilizer, pesticides and weedicide. क्या हो रहा है यहाँ पे, हाई राइज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, फूड ग्रेन जो हो रहा है हाई में प्रोडक्शन होना चाहिए करके ग्रीन रेवोल्यूशन रिजल्ट हो रहा है. यहाँ पे एनवायरमेंटल बैलेंस क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो बैलेंसमेंट ऑफ एनवायरनमेंट यहाँ लॉस हो रहा है, तो इसकी वजह से बहुत लोग केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं और पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं और वीड किट्स यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे केमिकल थिंग्स यूज हो रहा है. अनलिमिटेड लिफ्टिंग ऑफ वाटर, इरोशन ऑफ लैंड, मिसयूज ऑफ वाटर. अनलिमिटेड लिफ्टिंग ऑफ वाटर को अनलिमिटेड जैसे चाहिए वैसे यूज कर रहे हैं, और इरोशन ऑफ लैंड को इरोशन कर रहे हैं, मतलब सॉइल नहीं रहने दे रहे हैं, ट्रीज को कट कर रहे हैं, तो क्या होता है वहां पे सॉइल इरोशन होता है. बारिश आने पर ट्रीज रहता है तो क्या कहता है, सॉइल को पकड़ के रखा रहता है, तो उसकी वजह से सॉइल नहीं रन ऑफ होते हैं. लेकिन वहीं पे जब बारिश होता है तो यहाँ पे सॉइल इरोशन हो जाता है, सॉइल क्या हो रन ऑफ हो जाता है. हर एक जगह पे बिल्डिंग्स बन रहे हैं ट्रीज कट करके, ट्रीज कम होने की वजह से यहाँ पे इरोशन ऑफ लैंड हो रहा है. और मिसयूज ऑफ वाटर को मिसयूज कर रहे हैं, वाटर को अच्छे से नहीं यूज कर रहे हैं. व्हाट कैन वी डू टू कैच द सेक्रिसिटी ऑफ अ फेमिन, हम लोग क्या कर सकते हैं सेक्रिसिटी ऑफ फेमिन्स को प्रोटेक्ट. प्लांटेड यूजिंग ऑफ वाटर एंड रीयूज ऑफ वाटर, प्लांट करना है हमें ट्री, यूजेज ऑफ वाटर, प्लांट करना है ट्री, हमें प्लान करना है कि वाटर को हम कैसे रीयूज कर सकते हैं. प्रॉपर प्लानिंग ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड हार्वेस्टिंग एट द लोकल लेवल, हमें प्लानिंग करना है कन्वर्जन और हार्वेस्टिंग ऑफ वाटर कैसे करना चाहिए लोकल लेवल पे. लार्ज स्केल प्लांटेशन ऑफ ट्रीज एंड प्रिवेंट
और हमें डिफॉरेस्टेशन से प्रोटेक्ट करना है. मेकिंग अप्रोप्रिएट चेंजेस इन द प्लांट, टेकिंग इनटू अकर्स द वेदर फोरकास्ट. हमें चेंज करना है प्लान को और हमें वेदर फोरकास्टिंग का सब एक अकाउंट बनाना है. लार्ज स्केल ट्री प्लांटेशन, नॉन famine, no land erosion. Consume of varieties of such slogan and use them during environmental awareness rising. What happened? We have to plant many trees. Water reuse करना है तो इससे farming नहीं होगा. So now cloud blast. What causes rain? Sometimes the water coming down from the rain clouds does not reach the land in the form of the rain. Instead, due to the very high temperature near the land, it vaporizes and goes back into the some cloud. Such a result, the amount of vapor in those clouds become very high due to rapid condensation. Its rain suddenly over a specific and small region at the rate of 1000 meters per hour or more. This is called a cloud blast. ब्लास्ट क्या है? रेनफॉल कैसे अकर होता है? एक क्लाउड रीचेस द रेनफॉल कैसे रीच होता है? क्लाउड जो होता है डज नॉट रीच द लैंड. जो क्लाउड है रीच नहीं होता लैंड पे, वो एक लैंड पे रेनफॉल के जैसे रीच होता है. तो इंस्टेड इन नीड ड्यू टू द हेवी टेम्परेचर नियर द लैंड, वो इवेपोरेट होता है. क्लाउड जो पानी इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होने के बाद वो क्लाउड फॉर्म होता है. क्लाउड फॉर्म होने के बाद वो रिजल्ट होता है वेपर्स में. वेपर्स होने के बाद वो क्लाउड जो है वेरी हाई हो जाता है. हाई होने के बाद रैपिड कंडीशन होने के बाद सडनली रेन होने लगता है. तो छोटे छोटे रीजन में वो रेट पे 1000 मिलीमीटर पर आवर्स में रेन होता है और मोर. दिस इज कॉल्ड अ क्लाउड ब्लास्ट. जहाँ पे छोटा छोटा रीजन है वहाँ 100 मिलीमीटर पर आवर्स या उससे ज्यादा पर जब रेनफॉल होता है उसको क्लाउड ब्लास्ट कहते हैं. नाउ फ्लड. We have already learnt about the flood and effect of flood. Collect information about the flood that has occurred at the various places in Maharashtra in the last few years. हम लोग फ्लड के बारे में पहले से पढ़े हैं और इफेक्ट ऑफ द फ्लड के बारे में पढ़े हैं. आपको कलेक्ट करना है इंफॉर्मेशन ऑफ द फ्लड दैट अकर इन द महाराष्ट्र इन लास्ट फ्यू ईयर. आप लास्ट ईयर भी देखे थे, बारिश की वजह से बहुत सारा फ्लड हुआ था, तो इसके बारे में आप कलेक्शन करोगे. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश द National Flood Commission in 1976. The commission had made specific effort towards the control of flood. Our land regarding flood control is kept ready for national level of village level. Large scale damage of property and loss of lives can be avoided because of this plan. गवर्नमेंट ने क्या किया? एस्टैब्लिश किया है गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया है इंडिया गवर्नमेंट नेशनल फ्लड कमीशन करके 1976 में. एक क्या कहता है? एक स्पेसिफिक कंट्रोल करता है फ्लड के बारे में, प्लान करता है रिगार्डिंग द फ्लड और रेडी रहता है कोई भी विलेज में अगर लेवल टू द विलेज नेशनल लेवल टू द विलेज लेवल से लेके नेशनल लेवल तक वो एक कंट्रोल करता है, रेडी रहता है हर एक लार्ज स्केल डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी जो भी लॉस होता है. तो ये प्लान के अवॉइड करता है, ये प्लान के थ्रू अवॉइड हो सकता है. सो प्रोटेक्टिव मेजर इन व्यू ऑफ फ्लड. प्रोटेक्टिव मेजर क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल डैम इन द माउंटेनियस रीजन. जहाँ पे माउंटेनियस रीजन है वहाँ पे स्मॉल डैम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रीकोलेशन टैंक को प्रीकोलेशन टैंक्स जो रहता है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. मेकिंग रिवर बेड फ्लैट. रिवर बेड जो है उसको फ्लैट करना है.
कल्टिवेशन ऑफ न्यू फॉरेस्ट, कल्टीवेशन ऑफ न्यू कल्टीवेट करना है न्यू फॉरेस्ट को, और कनेक्टिंग रिवर्स को कनेक्शन करना है। तो इससे क्या होगा, फ्लड नहीं होगा। अगर जहाँ पे माउंटेनियस रीजन है वहाँ पे डैम, स्मॉल डैम्स को बिल्ड करना है, जैसे जो भी पानी आएगा वहाँ पे वो डैम में स्टोर हो जाएगा। और टैंक जो कंस्ट्रक्ट करना है, टैंक, प्रिकोलेशन ऑफ द टैंक, टैंक्स को अच्छे से देखना है कहीं वो खराब तो नहीं हुआ है, उसको प्रिकोलेशन करना है। और रिवर बेड को क्या करना है, फ्लैट करना है। उसके बाद फॉरेस्ट जो कट हुआ है उसको कल्टीवेट करना है, न्यू फॉरेस्ट को कल्टीवेट करना है। और रिवर्स को यहाँ पे कट कर दिए हैं तो उनको कनेक्शन करना है, कनेक्टिंग करना है एक रिवर से एक रिवर को। तो इससे क्या होगा, फ्लड नहीं काज होगा। नाउ लाइटनिंग, वी हैव लर्न अबाउट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड लाइटनिंग स्ट्रिक इन द लेसन ऑन द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इन दिस लेसन learn something more about the lightning and the measure for protecting from it. हम लोग स्टैटिस्टिक लेसन में पढ़े थे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में लाइटनिंग ऑफ लाइटनिंग के बारे में, तो और हम इसमें प्रोटेक्शन कैसे करना वो हम पढ़ेंगे। वंडरफुल थिंग टू नो, लाइटनिंग टेम्परेचर मोर इंटेंस than sun. Not all lightning strikes the ground in the fact about 95% of the lightning flashes are limited to the sky. Only 5% of the lightning reaches the ground. Lightning can be generated within one cloud because two clouds are between a cloud and the ground. Above 40 lightning flash occur per second in the atmosphere. The temperature generated by the lightning is higher than that of the sun. Due to this high temperature, the air such high pressure expands suddenly and loud crashing sound in the heart. What is the lightning? Lightning क्या है, एक मोर इंस्टेंस एंड लाइटनिंग क्या है, लाइटनिंग का टेम्परेचर सन के टेम्परेचर से भी ज़्यादा है। तो ये 95% जो है फैक्ट्स ऑफ लाइटनिंग होता है, फ्लैश ऑफ लाइटनिंग होता है। 5% ग्राउंड को रीच होता है, स्काई में 95% होता है लिमिटेड लाइटनिंग, और 5% ग्राउंड तक पहुंचता है। क्या होता है, एक ही क्लाउड के वजह से होता है, बिटवीन टू क्लाउड और टू क्लाउड वो ग्राउंड पे, अ क्लाउड एंड द ग्राउंड, जो क्लाउड और ग्राउंड के बीच लाइटनिंग होता है वो ग्राउंड पे ही लाइटनिंग का फ्लैश पर सेकेंड में लाइटनिंग क्या होता है, पर सेकेंड में अकर होता है एटमॉस्फेयर में। तो ये टेम्परेचर क्या हो, जनरेटेड बाय लाइटनिंग हायर देन द सन, जो लाइटनिंग पे जेनरेट करता है टेम्परेचर सन से भी ज़्यादा रहता है। तो ये क्या होता है, एयर अंडर हाई प्रेशर एक्सपैंड सडनली एंड लाउड क्रैशिंग साउंड इज हर्ड। क्या होता है यहाँ पे, जब ये लाइटनिंग ब्रास्ट होता है तो यहाँ पे इसका एयर में जो हाई प्रेशर एक्सपैंड हो जाता है, जो टेम्परेचर एयर में रहता है वो उसका प्रेशर एक्सपैंड हो जाता है और सडनली एयर लाउड क्रैशिंग होता है, इसका जोर से आवाज आता है और हम लोग ये सुन सकते हैं। बहुत लाइटनिंग होता है स्काई में और ये साउंड हम सुन सकते हैं। लाइटनिंग स्ट्रिक्स ओपन ग्राउंड मैक्सिमम टाइम, the world mortality rate due to lightning is low. However, survivors of the lightning streak suffer long-term effect. Immediate treatment of lightning affected person can save their life. A study of place struck with lightning shows that it happens more on open ground than under a tree or near water. Fishponds has occur most open when a person is at the high place or near the tall object. क्या होता है, लाइटनिंग अकर जहाँ होता है वो ओपन प्लेस में अकर होता है, और लाइटनिंग अगर पर्सन को अफेक्ट हुआ है इससे, अगर ऑन द
अच्छे से ट्रीटमेंट दिया जाएगा ऑन द स्पॉट और इमीडिएटली ट्रीटमेंट दिया जाएगा तो वो पर्सन का लाइफ सेव कर सकते हैं। और ये ज़्यादातर ओपन ग्राउंड में अकर होता है, अंडर द ट्री मोर देन अंडर द ट्री और नियर वाटर। पानी में और ट्री के नीचे से ज़्यादा जहाँ ओपन एरिया रहता है वहाँ ये अकर होता है। और ये हाई टॉल, अगर पर्सन हाई प्लेस में है या फिर नियर द टॉल ऑब्जेक्ट पे, वहाँ पे ये ज़्यादा अकर होता है। नाउ वी विल लर्न द what precaution will you take during the thunderstorms। thunderstorm आता है तो precaution क्या लेना है। do not stand or on open ground or below a tree। हमें खड़े नहीं होना है ओपन ग्राउंड में या फिर ट्री के नीचे। डू नॉट गो टू अ हाई लोकेशन और अ क्लाइम अ ट्री। हमें हाई लोकेशन और ट्री पे थंडर स्टॉर्म रहता है तो हमें हाई लोकेशन में नहीं जाना है और ट्री को नहीं क्लाइम करना है। डू नॉट स्टैंड नियर एन इलेक्ट्रिक पोल और टेलीफोन पोल और अ टावर। हमें स्टैंड नहीं होना है इलेक्ट्रिक पोल जहाँ पे है और टेलीफोन पोल कहाँ पे और टावर, ये सब जहाँ पे वहाँ हमें नहीं खड़ा होना है। डू नॉट लर्न एंड वायर फ्रेंड्स, डू नॉट लीन और वायर फेंस अराउंड द फार्म, अ कॉम्पाउंड, अ गार्डन और अ हाउस। हमें वायर फ्रेंड्स नहीं करना है ग्राउंड में या फिर फार्म में या फिर कहीं भी गार्डन में। इफ यू आर on a two-wheeler, a bicycle, a truck or a boat, get off immediately and go to a safe place। अगर आप टू व्हीलर पे या बाईसाइकिल या फिर ट्रैक्टर या बोट पे आप ट्रैवल कर रहे हो, इमीडिएटली आपको स्टॉप होके आपको सेफ प्लेस में जाना है। डू नॉट गैदर ऑल टुगेदर इन वन प्लेस। आपको एक ही जगह पे सब लोग नहीं गैदर रहना है। Take care to keep a distance of 15 feet between any two person। आपको केयर रखना है कि आप 15 फीट फार हो, दूर हो पर्सन से। Do not use punched plumbed in electrical appliance। Do not use a mobile or telephone। हमें मोबाइल टेलीफोन नहीं यूज करना है, अब प्लग भी नहीं यूज करना है अब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में। Stand on dry wood, a plastic sheet, सैक और जूट, सॉक्स और ड्राई लीफ। आपको खड़े रहना है ड्राई लीफ पे या फिर ड्राई वुड में, प्लास्टिक शीट पे या फिर आपको जूट क्लॉथ रहता है उस पे खड़े रहना है। Keeping your feet together, support yourself on the sole of your feet, placing your hand on your neck and cruise loss। आपको क्या करना है, फीट टुगेदर सपोर्ट में रखना है और आप अपने आप को सोल करना है, फीट को प्लेस करना है ऑन योर हैंड ऑन द। स्विमर और फिशर शुड इमीडिएटली कम आउट ऑफ द वाटर। जो भी स्विमिंग कर रहा है या फिर फिशमैन जो फिश को पकड़ने गया है वो इमीडिएटली वाटर से बाहर आ जाना चाहिए। अपुच हाउस इज द सेफ प्लेस इन फाइंड आउट इफ देर इज अ लाइटनिंग कंडक्टर ऑफ on any tall building near your house। if necessary get a lightning conductor fitted in your house। lightning conductor जो रहता है वो अच्छा रहेगा आपको अपने बिल्डिंग में। कहीं पे भी अगर lightning conductor नहीं है वो आपको फिट करना है। now volcano। a volcano is the natural event or a phenomena। The interior of the land is very hot moment of hot substance continuously occur from the interior towards the surface of the earth। As a result, sometimes the solid, liquid and gaseous substance below the earth crust are pushed towards the crust। When these substances come out of the earth crust in the eruption, it starts flowing in, it is called a volcano। volcano क्या है, एक natural event है, phenomena है, it occurs naturally because of the hot of the earth।
इंटीरियर हॉट ऑफ द अर्थ, अगर अर्थ का इंटीरियर बहुत हॉट है तो ये अकर होता है. तो ये मूवमेंट ऑफ द हॉट सब्सटेंस कंटिन्यूसली अकर, ये जो मूवमेंट है सब्सटेंस का कंटिन्यूसली अकर होता है इंटीरियर टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो इंटीरियर रहता है अर्थ सरफेस के लिए. ये रिजल्ट होता है सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस के बिलो द अर्थ क्रस्ट के नीचे जो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस रहता है उसके वजह से ये पुस्ट करता है, पुश टुवर्ड द क्रस्ट, ये अर्थ क्रस्ट के वजह से पुस्ट होता है तो ये अकर हो जाता है. तो क्या करता है, अर्थ क्रस्ट हो जाता है, इरेप्शन हो जाता है और ये फ्लोट होने लगता है. आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो वोल्केनो इरेप्शन. और अर्थ के अंदर जो सॉलिड, लिक्विड, गैसियस रहता है पूरा मिक्स होके बॉईल होने लगता है तो ये अर्थ क्रस्ट हो जाता है, तो ये इरेप्शन हो जाता है. What are the effect of the volcano? The chemical substance such as lava, vapors, hot mud, sulfur, etc. get collected on the surface of the earth and thereby mountain and the hills are created. क्या होता है यहाँ पे, ये इफेक्ट कैसे होता है, जो केमिकल सब्सटेंस रहता है जैसे लावा हुआ, वेपर्स हुआ या हॉट मड हुआ, सल्फर हुआ, ये सब कलेक्ट हो जाता है सरफेस ऑफ द अर्थ और माउंटेन्स और हिल्स क्रिएट कर देते हैं. द एटमॉस्फेयर गेट polluted due to the harsh and gaseous agent by the volcano. अर्थ एटमॉस्फेयर pollute हो जाता है volcano eruption के वजह से. Often it rains as a result of the volcanic eruption. बाद में ये बारिश होने लगता है volcanic eruption के जैसे. Temperature rises due to the हॉट गैसियस, टेम्परेचर क्या होता है, राइज हो जाता है हॉट गैसियस के वजह से. फॉरेस्ट एंड सेटलमेंट्स गेट बर्स्ट ड्यूरिंग द हॉट मड. फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट और सेटलमेंट क्या होता है, बर्न हो जाता है हॉट मड के वजह से, गर्म मट्टी के वजह से फॉरेस्ट सब बर्न हो जाते हैं. वोल्केनोज eruption in the sea as they do on land. The some substance that comes out during the eruption of the volcanoes on the earth are rejected. During the eruption of the volcanoes in the sea, some islands are created due to the eruption of the volcanoes in the sea. वोल्केनो इरप्शन क्या होता है, सी में, सी एज दे डू ऑन द लैंड. सी में भी अगर होता है, लैंड पे भी अगर होता है. ये सब्सटेंस क्या होता है, ड्यूरिंग द इरप्शन वोल्केनोस ऑन द अर्थ पे क्या होता है, वोल्केनोस इजेक्ट होके ड्यूरिंग द वोल्केनोस सी में भी फॉर्म होता है. इसलैंड आर क्रिएटेड ड्यू द इरप्शन ऑफ द वोल्केनोस इन द सी. आइलैंड जो है वो क्रिएट हो जाता है वोल्केनो एरप्शन से. इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिवेंट द एरप्शन ऑफ द वोल्केनोस, टू स्टॉप इट आफ्टर एरप्ट्स और टू कंट्रोल इट. हाउएवर बाय मीन्स ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इट इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट एन eruption and to take immediate step for the disaster management. तो ये हम कंट्रोल, अगर एरप्शन हो गया वोल्केनो का, ये कंट्रोल नहीं, स्टॉप नहीं किया जा सकता है, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी के वजह से कोई भी डिजास्टर इमीडिएट स्टेप लिया जा सकता है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए. नाउ तूफान, सुनामी. Now we will learn about tsunami. As on a land, earthquake and volcanic eruption occur at the both of the sea. Too, in an earthquake occurs at the bottom of the ocean. The energy release pushes the water upward. As a result of this, a peculiar types of waves are formed. These waves are not very high near the surface, but they start spreading very fast to a long distance. The velocity of these waves is 800 to 900 km per hour. When they reaches a coastal area, their velocity is reduced, but these height is found to have a increased terminus event to about 30 meters. What happened? We learnt about the volcano eruption, and we come to know that the volcano eruption occurs both in the land and the sea.
वैल्केनो एरप्शन क्या होता है, लैंड में भी अकर होता है, सी में अकर। जितना लैंड पे नहीं अकर होता उतना ज्यादा वैल्केनो एरप्शन सी में अकर होता है। सो अभी हम सुनामी के बारे में पढ़ेंगे। सुनामी क्या है, एक अर्थक्वेक हुआ या वैल्केनो एरप्शन जो बॉटम ऑफ द सी में अकर होता है, और ये इसका एनर्जी रिलीज होता है। पुश द वाटर क्या करता है, ओशन का वाटर को पुश करता है अपवर्ड, तो ये प्रीक्लोर होके वेव्स में फॉर्म हो जाता है। वेव्स में फॉर्म होने के बाद क्या होता है, हाई, बहुत वेरी हाई सरफेस सोर्स में ये वेव्स फॉर्म होता है और बहुत स्प्रेड हो जाता है वेरी फास्ट। ये वेव क्या होता है, फॉर्म होता है और वेरी फास्ट में, बहुत हाई टेम्परेचर में फॉर्म हो जाता है और बहुत फास्ट पूरे लॉन्ग डिस्टेंस पे ये स्प्रेड हो जाता है। इसका किलोमीटर, ये वेव का वेलोसिटी है 800 to 900 किलोमीटर पर आवर, इतने जो से ये चलता है। और ये रीच होता है कोस्टल एरिया में। कोस्टल एरिया में रीच होने के बाद इसका वेलोसिटी क्या रिड्यूस होता है एंड हाई इज फाउंड इन द हैव इंक्रीजेस, और इसका जो हाइट है बहुत इंक्रीज हो जाता है, इवेंट अबाउट 30 मीटर तक इंक्रीज होता है। Such a wave generated by the earthquake or volcano occurring on the ocean flood is called a tsunami. Tsunami is in a Japan word which means harvest wave. क्या होता है ये सुनामी, कैसे अकर होता है, अर्थ के वजह से या फिर वैल्केनो एरप्शन की वजह से। सुनामी जो वैल्केनो एरप्शन होता है ओशन में, उसके वजह से अकर होता है। जो वेव जेनरेट होता है अर्थ के वेव और वैल्केनो एरप्शन को, उसको हम सुनामी कहते हैं। और जापान के वर्ड में हम बोलते हैं हार्बर वेव। हार्बर्स वेव करके जापान के वर्ड्स में बोलते हैं। डिस्ट्रक्शन इफेक्ट ऑफ सुनामी। डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ सुनामी, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन आर डैमेज। क्या होता है सुनामी आने तो जो बिल्डिंग्स रहता है और कंस्ट्रक्शन जो होता है वो डैमेज हो जाता है। देयर इज अ लार्ज स्केल लॉस ऑफ लाइफ एंड फाइनेंशियल लॉस। इसमें लार्ज स्केल लॉस होता है, लाइफ एंड फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। बोट एंड शिप नियर द कोस्ट गेट डैमेज। बोट और शिप जो रहता है कोस्टल एरिया में वो डैमेज हो जाता है। ट्रीज गेट अपरूटेड, लैंडस्लाइड टेक्स प्लेस ऑन द लार्ज स्केल। ट्रीज जो होता है अपरूटेड हो जाता है और लैंडस्लाइड क्या हो जाता है, वो लार्ज स्केल में डैमेज हो जाता है। Changes take place in the original land near the coast giving rise to a swamp. यहाँ पे प्लेस चेंज हो जाता है, चेंजेस प्लेस हो जाता है ओरिजिनल लैंड और कोस्टल रीजन तो स्वैप हो जाता है। ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्शन अराइज, ट्रैफिक का ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है अराइज हो जाता है। द बिजनेस इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू द सी आर अब्सॉर्ब्टली अफेक्टेड एंड नॉर्मल डे टू डे लाइफ इज डिस्प्यूटेड। क्या होता है, बिजनेस ऑफ इंडस्ट्रीज रिलेटेड सी को अफेक्ट कर देता है। अफेक्ट होने के बाद नेचुरल डे टू डे लाइफ डिस्टर्ब्स हो जाता है। लार्ज स्केल डैमेजेस काज टू द हार्बर्स, लार्ज स्केल डैमेज काज हो जाता है हार्बर्स के वजह से। तो यहाँ पे सुनामी के वजह से बहुत सारे इफेक्ट है जो अकर हो जाता है। यहाँ फाइनेंशियल लॉस हो जाता है लार्ज स्केल में, और बहुत सारे हाउस बिल्डिंग सब टूट जाते हैं। ट्रीज क्या होते हैं, अपरूटेड हो। ट्रीज का सुनामी तो अकर होता है ना चिल्ड्रन, तो ये यहाँ पे क्या होता है, ट्रीज जो होता है अपरूटेड हो जाता है। Precautionary measurement. When a tsunami wave is formed due to an earthquake on the sea floor, it is necessary that an immediate estimate is made for its progress and a warning of the danger is issued to the people in the coastal area. For this purpose an artificial geostationary satellites of a great use. तो यहाँ पे अगर सुनामी अकर हो रहा है तो प्रिकॉशन मेजर क्या है, अर्थक्वेक या सी फ्लोर के वजह से सुनामी अकर होता है तो यहाँ पे वार्निंग दिया जाता है कि हाँ क्या इशू किया जाता है पीपल्स को कोस्टल एरिया में, और आर्टिफिशियल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को यूज किया जाता है। तो सुनामी की वजह से यहाँ से बहुत सारे हमें लॉस फेस करना पड़ता है। नाउ स्टॉर्म, वी हैव लर्न
already learned about the formation of storm and their effects. Suppose you are catching in a storm, what will you do to keep yourself safe? Storm हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, कैसे वो फॉर्म होता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं वो जो स्टॉर्म फॉर्म होता है यहाँ पे. तो इसका हमें, अगर हम स्टॉर्म में काज हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए वो हम पढ़ेंगे. Try this. Regularly cut down trees or branches that are likely to fall and cause damage. हाँ, जो ट्री रेगुलरली कट ऑफ हो रहा है, ब्रांचेस और जो फॉल हो सकता है, लाइकली वो ट्रीज को कट कर लेना चाहिए जो ट्री अगर वो गिर सकता है और डैमेज में है. इफ यू आर आउटसाइड टेक शेल्टर इन अ सेफर प्लेस. अगर स्टॉर्म अकर होता है तो हमें, अगर आप बाहर हो, आप अपने सेफ प्लेस में जाना है, शेल्टर लेना है. इफ यू आर अवे फ्रॉम द हाउस इन्फॉर्म योर क्लोज रिलेटिव एंड फ्रेंड्स अबाउट योर एक्स्ट्रा लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन. तो अगर आप घर से बाहर हैं, आप इन्फॉर्म करना अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड को आप कौन से लोकेशन पे हो. एट होम कट द वेव्स ऑफ द गैस रेगुलेटर एंड shut the waves of the gas regulator and turn off the electric supply. अगर आप घर पे हो, सुनामी अकर हुआ है, सॉरी स्टॉर्म अकर हुआ है, तो आपको रेगुलेटर को बंद कर देना है गैस का और इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर देना है. मेक टेलीफोन कॉल टू वार्न योर रिलेटिव एंड फ्रेंड अबाउट द प्रोबेबल डैमेज. लेट देम गो टू अ सेफ्टर प्लेस. अगर आपके जहाँ आपके रिलेटिव हैं वहाँ पे कॉल करके आप बोल दो कि आपके एरिया में ऐसा हुआ, वहाँ पे भी आ सकता है, तो वो आप सेफ्टी प्लेस में जा सकते हैं. गिव टेम्पररी शेल्टर टू द पीपल हु आर फार अवे फ्रॉम देयर हाउस. अगर जो भी रोड पे पीपल हैं उनको अपने घर में शेल्टर दो, जो टेम्पररी शेल्टर देना है आपको, जो अपने घर से बाहर हैं. So ये हुआ. So here I complete my chapter about the disaster management. So in my next video I am going to explain you next chapter. यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट का चैप्टर फिनिश कर रही हूँ. मैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में आपको दूसरा चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी. तो ये 13 अक्टूबर जो है इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिडक्शन का यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है. 13 अक्टूबर जो है इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिडक्शन सेलिब्रेट किया जाता है. सो हियर आई कंप्लीट माय चैप्टर डिजास्टर मैनेजमेंट.